افشاں آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت مجھے شدید قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چڑیا مینا طوطا ہوتا تو میں بتا دیتا کہ اگلے ہفتے کیا ہونے والا. اگلا ہفتہ پاکستان کے لیے کیسا گزرے گا؟ سیاست کا عمران خان کے لیے کیسا گزرے گا؟ وہ تو اتوار نو ہو جانا ہے فیصلہ. تو اگر ہمارے پاس طوطا مینا گلہریاں نہیں ہیں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ کیسا گزرا. ہاں یہ آپ نے میرا احساس کمتری ختم کر دیا یہ بات کر کے، کیونکہ ہم تو پچھلے ہفتے بالکل ان جگہوں پہ موجود تھے جہاں پر سیاست اسی ہفتے جڑا ہونا ہے اتوار نو مک جانا. بات شروع کرتے ہیں مہنگائی مکاؤ مارچ سے. PMLN کے مہنگائی مکاؤ مارچ سے، جو کہ ان کے 188 ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا وہاں پہ حمزہ شہباز اور مریم نواز دونوں ٹرک پر موجود تھے. سفر ان کا شروع ہوا. بڑا تھانوں گرمی دوڑایا کلمہ چوک دے فلائی اوور دے اتنے اسی کنے کلومیٹر چلے ہوں گے. میں نے تو میٹر آن نہیں کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ کافی چلے. بہت رش تھا واقعتاً. لوگ نکلے اور انہوں نے بتایا، خواتین مرد سب نکلے اور بچے نکلے. تو بالکل وہ ایک اعلان تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کتنی مضبوط ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑا اعلان یہ تھا کہ ایک سیاسی معاملہ آپ حق و باطل کی جنگ قرار دے کر جس طرح سے معاشرے میں سیگریگیشن بڑھا رہے ہیں، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ آپ کے اس چورن کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل یہ بات. اور دوسری بات کہ نہ صرف اس چیز سے انکار، بلکہ چونکہ وہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس وقت، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو لگ رہا تھا کہ عمران کے سروائیو کرنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو خیر ابھی بھی یو نیور نو ان پاکستان، لیکن یہ کہ اس وقت ذرا چانسز لگ رہے تھے. وہ بڑھ کے بھی بہت مار رہے تھے ان کے وزیر مشیر. ادوں تک 10 لاکھ دا جلسہ نہیں نہ ہویا سی، نہیں ہوا تھا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ اس جلسے کے اندر حمزہ شہباز سے بات ہوئی، ہو سکتا ہے مستقبل کے وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے، اور جو ہے مریم نواز سے بات ہوئی، اور دونوں نے اور اس کے علاوہ اور لوگوں سے بات ہوئی. سب نے یہی کہا کہ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے عمران نیازی، اور ہم اسی جھوٹ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، میں باقی بات کا جواب بعد میں دیتی ہوں. تسی حمزہ شہباز واسطے CM پنجاب کہہ دیتا ہے، آپ نے مریم نواز کے لیے PM کیوں نہیں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتی ہیں؟ بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. کیوں نہیں کہا اس کا میں آپ کو تفصیلاً جواب دوں گا پروگرام کے اگلے حصے میں. لیکن میرا خیال ہے مریم نواز کی گفتگو ضرور سنیں جو انہوں نے نیٹو میڈیا سے ایکسکلوسیولی کی. عمران نیازی کے یہ مارکہ حق و باطل ہے، آج جب آپ نے بتا دیا کہ وہ حق کی طرف ہے. دیکھیں، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کو نالائکی، تاریخی نااہلی، ناکامی سے بچانے کی جنگ ہے، جو جنگ پاکستان کے عوام اب جیت چکے ہیں انشاءاللہ. تو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد عمران کو رخصت کرنے. نہیں، رخصت تو وہ ہو گیا، بس بائی بائی کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہفتے کا ایک مومنٹم جو بلڈ ہوا اس کا آغاز تھا، لیکن جو کلائمیکس آیا وہ کلائمیکس تھا 10 لاکھ کا مجمع. نہیں، کلائمیکس تو کل قومی اسمبلی میں تھا. کاشی صاحب میں آج قومی کہہ دیتا ہے، کل تے قومی لگی اس میں. اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی آئے گی یا تبدیلی جائے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن نہیں، وہ کلائمیکس وہ تھا، کیونکہ کلائمیکس وہ اس لیے تھا کہ اس وقت تک جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل یوتھیے ہیں ان کا کانفیڈنس بہت ہائی تھا. 10 لاکھ بندہ اکٹھا ہوگا، ہم طاقت کے زور پہ اسمبلیاں گرا دیں گے، جلا دیں گے، توڑ دیں گے، ہم پھٹ جائیں گے، ہم عالمی سازش کا جواب دیں گے، یا ہم پھٹ جائیں گے. یس ایگزیکٹلی. عالمی سازش کا جواب دینے کے لیے انہوں نے عثمان بزدار کا ہی استعفیٰ مطلب بھڑک کر کے اس کا بم پھوڑ دیا. وہ جو آپ نے ٹویٹ کی تھی جلسے کے اگلے دن، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہ جو لہرایا گیا تھا جلسے میں وہ عثمان بزدار کا استعفیٰ تو نہیں تھا، وہ لیٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یا تو وہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ تھا، یا پھر وہ راشن لسی جڑی لہرا دیتی. چلیں اب ان کے حالات اتنے خراب ہیں، میرا خیال ہے کہ اب جھکتے مارنا، مجھے تو بڑی ہمدردی بھی فیل ہو رہی ہے. اچھا، ہاں، میں آپ کہیں گے میں ڈرامہ کر رہا ہوں، لیکن نہیں. بٹ آئی وانٹ ہم ٹو اسٹے.
आप अकेली नहीं हैं। आप यकीन कीजिए मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगता है इमरान हेटेड का, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू स्टे। अपनी टेन्योर कंप्लीट करे ये, और जितने पीटीआई वाले बेइज्जत हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि 5 साल मुकम्मल रुसवाई के बाद अब जो है ये दी एंड हो इनका। नहीं, थोड़ा सा अगर मैं इसको किसी और एंगल में बयान करूं तो मैं ये चाहती हूं कि इनके सपोर्टर लाने वाले, ले जाने वाले, बिठाने वाले सबके चाव मुकम्मल तौर पर पूरे हों। बेशक इसमें कबाड़ा निकल जाए अवाम का और पाकिस्तान का, लेकिन चाव पूरे होने देखिए, आपको याद है ना, हमें तो जलसे में, परेड ग्राउंड जलसे में जब हम एंटर हो रहे थे तो क्या कहा था एक शख्स ने, इतनी महंगाई है नहीं जितना शोर रोला डाला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आया था कोई, न्यूजीलैंड से आया था कोई, और इंग्लैंड से आया था। हाँ, लेकिन वो हमें ये बताने आए थे कि देखें ये आपने क्या खामखा डेमोक्रेसी के पूरी रट दुनिया लगा। में महंगाई हो रही है तो आप क्या, बिल्कुल सिर्फ महंगाई नहीं, उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि 20 साल भी लोग रह लें दे इक़्तिदार दे विच तुसी की रोला पाया होगा। मत कहें कुछ, उनको सदमे में हैं, छोड़ दें, ना कहें। आप मुझे ये बताएं कि 10 लाख बंदा था? देखें, अगर मैं कहूँगी कि 20,000 भी नहीं था, शायद मसला इसीलिए हुआ है, तो फिर आप कहेंगे कि अफशां ये तो मैं काट दूंगा बात। नहीं, तो मैं नहीं इसलिए- काटूंगा, बल्कि मैं इसमें एडिशन ये करूंगा कि जाते हुए हमने एक सहाफ़ी से मुलाकात की, सहाफ़ी दोस्त से, इंडिपेंडेंट के। मैंने उनको सलाम किया, आपने उनसे पूछा कितने बंदे हैं, 10 लाख हैं? तो उन्होंने कहा 25 लाख हैं, आपको गिनना नहीं आता है। तो मैं यही कहूँगा, आपको गिनना नहीं आता है, आपको गिनती भूल गई है। बिल्कुल। कुछ मनाजिर थे जो मैंने कैमरे में कैद किए उस रोज़ जब खान साहब ने अपनी तकरीर शुरू की, तो लोग पंडाल से जाना शुरू हो गए थे। हो सकता है कि वो 10 लाख में से कोई 10 लाख जड़े ने ना वो निकल गए हों पंडाल तो खान साहब की तकरीर वो सुने एक बगैर। बड़ा एक अजीब व गरीब फेलियर था, आवाज़ नहीं आ रही थी, मैस था, हमने ये देखा। और आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ हेलो? रही, हाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बाइडन को फ़ोन कर रहे हैं, बाइडन उठा नहीं रहा। नहीं, सीरियसली बहुत ही मैस मचा हुआ था। और आपने देखा लोग वाक़तन, मेरा अपना भी स्पेकुलेशन, हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने लोग नहीं थे। हमने तो उससे पहले नवाज लीग के जलसे में रश देखा ना, तो उसके मुकाबले में इट वॉज नथिंग। काशिफ, इससे ज़्यादा अहम बात मुझे तादाद से और ये वो से ज़्यादा अहम बात ये लगती है कि जब लीडर बात कर रहा होता है तो लोगों का इंटरेस्ट होता है। लोग खड़े होकर यूं सुनते हैं। देखा है मैंने पीपल्स पार्टी के 50वें योम तासीस को कवर किया था। मैंने वहाँ देखा था कि लोग खड़े होकर सुन रहे थे। जो ड्राइवर्स लोग बीबी शहीद को देखते थे तो बिल्कुल सुनते थे। बिलावल को देखते हैं तो सुनते हैं कि बिलावल क्या बात कर रहे हैं। जो लोग पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, जो ड्राइवर्स हैं, वो अपनी गाड़ियों में बैठकर रेडियो के ऊपर वो सुन रहे थे। और यहाँ पे यही परेड ग्राउंड थी, सर्दियों के दिन थे, शदीद सर्दी के। देन मैंने मरियम नवाज शरीफ को देखा है, जिस तरह से वो बात कर रही होती हैं अपनी रैलीज़ में या जलसों में, लोग खामोशी से खड़े होकर सुन रहे होते हैं। देन मियाँ साहब जब जीटी रोड रैली लेकर निकले, जिस तरह से जगह जगह पर लोग, मैं गुजरांवाला में लोगों के दरमियान से चलती हुई जा रही थी और ऐसे लग रहा था पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। अच्छा, मैं कदा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इस राज का पता लगा लिया है कि पीटीआई वाले अपने लीडर को क्यों ध्यान से नहीं सुनते। एक तो उन्हें उस पर एतबार है, तो बोली जा तू सही कह रहा है जो कह रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि वो तकरीर तो 2500 दफ़ा सुन चुके हैं। ये असल बात है। भाईजान असी सुनी हुई है, सानू हिफ्ज हो गई हुई है। आप पे एतबार है, आप बोलें, आप कौम बनाएं, आप सब कहें कि ये चोर डाकू हैं, क्योंकि आपने कहा, वो तो हमें भी याद है। आप किसी भी पीटीआई वाले से बात करके देख लें तो वो वही तकरीर दोहरा देगा। नहीं, अब एक इजाफा मजीद हो गया है। प्लीज़ आप आलमी साजिश के साथ अमेरिका 3 इजाफे हुए हैं, आलमी साजिश, अमेरिका और आंसू। अच्छा, अब अमेरिका वाली बात पर इतनी हंसी आती है, उनको आंसू आते हैं। आपकी कौमी सलामती के हवाले से जो आपके मुशीर हैं मोईद यूसुफ, उनके पास कौन सी नेशनैलिटी है? और फिर आपके शहबाज गिल साहब हैं, जिनकी ज़बान, जिनके लबो लहजे के ऊपर तो थीसिस होने चाहिए।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਮਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, लेकिन देखें खान साहब के खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है। नहीं, हमें ये भी बताया गया था कि नेटो जो है उसने पैसे दिए अपोजिशन को। ओह माय गॉड, ये सबसे मजे की बात थी, और वो साहब ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं। अच्छा खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। एक और ऑब्जर्वेशन मेरी, जो फ़र्क था नवाज़ लीग के जलसे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में और पीटीआई के जलसे में, कि जैसे वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने आपको हैरेस किया, वो मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे बात थी। वैसे आपकी बड़ी हिम्मत है। आप गवाह हैं, मैं 2 रोज़ उस फेज़ से मेंटली, मुझे 2 रोज़ लगे उसमें से निकलने में। मैं 2014 से इनके धरने से जिस भी सियासी ऐसी कोई भी सरगर्मी होती है उसको कवर कर रही हूँ। मैं जीटी रोड रैली का भी मैंने बताया कि मैं लोगों के बीच में से गुज़र रही थी। लॉन्ग मार्च हो, इंतखाबी मुहिम कहीं चल रही हो, ख़ास तौर पर लाहौर में, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, नेवर। हालांकि आप जानते हैं इस मुआशरे में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। मैं इस कदर ज़हनी कर्ब का शिकार हुई कि मैंने इस हवाले से कुछ लिखा नहीं, कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, जैसे अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ कांपना शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये एक बेबसी का वो लेवल है जो शायद मर्द नहीं समझ पाएंगे, औरतें इससे रिलेट कर सकती हैं। आप फ्रीज हो जाते हैं और फिर आप उस एक लम्हे को, जितनी दफ़ा वो आपको हिट करता है, वो लड़का जो इमरान तेरे जान निसार के नारे लगा रहा था, जब आपने उसको पूछा कि क्या क्या जुमला बोला था, एक्चुअली चूंकि मैंने मास्क लगाया हुआ था, मेरा मुंह दूसरी जानिब था रिकॉर्डिंग के दौरान, और मुझे नहीं पता था कि वो अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहा है। तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं स्नैपचैट बना रहा हूँ आपकी तरफ। मैंने कहा इसको बंद करो। वो उल्टा उसने ये महसूस किया कि एक औरत होकर इसने मुझे ये कहा है कि फ़ोन बंद करो। और फिर मैंने गुस्से में कहा कि अगर ऐसा बग़ैर इजाज़त आपकी बहन के साथ कोई वीडियो बनाए तो वो लड़ने के लिए हमलावर हो गया। और मैंने तो आपके पीछे, तो पहनी थी वैसे, मैंने आपके पीछे छुप के पनाह लिया। मैं मानूंगा इस बात को, लेकिन खैर यू आर वेरी ब्रेव, आई मस्ट से यू आर वेरी ब्रेव। और जिस तरीके से, और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, मुसलसल हमें क्योंकि एक जनूनी अंदाज था, और ये वो जलसा था जहाँ पर लोग खुदकुश हमला आवर होने को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये वो जलसा था जहाँ पे लोग 100% इस बात पे मुत्तफिक थे कि वो सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं, और उन सबको मार दो, कत्ल कर दो, आग लगा दो, उड़ा दो, कोई भी जो उनसे इख्तलाफ करे। क्योंकि उनके नज़दीक इमरान खान पर तनकीद करने वाला या उनका कोई भी सियासी मुखालिफ ज़िंदगी पर हक नहीं रखता। मैं जो खौफज़दा हो गया अंदर से उन साहब की बात सुन के कि मैं पाकिस्तान के तमाम लीडर्स को उड़ा दूंगा सवाए इमरान खान के। इमरान खान हमारे लिए हक और बात हक है, इस्लाम है। मेरा बस चले तो मेरे पास अभी भी मौका दें तो ये सबको उड़ा दूं, 340 को उड़ा दूं, इमरान खान के अलावा सबको उड़ा दूं, जितने भी करप्ट लोग हैं। अल्लाह करे मुझे ये इजाजत मिल जाए कि मैं इनको बम मार के उड़ा दूं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको बम मार के उड़ाऊंगी। वो थोड़े से पैसे लेके सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हुई है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं सबको पता है, और वो बाहर से आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? यूएस इज गिविंग देम द मनी, ठीक है, नेटो इज गिविंग देम द मनी। मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं मौलाना डीजल को यहाँ पे बांध के ना लिपट जाऊंगी उसको, मैं बताऊंगी कि और ये जो चोर है, तो ये जो चोर है जो रही है उल्लू की कान रही है, नवाज शरीफ की बेटी, उसको कहे अपने बाप को घसीट के पाकिस्तान में लेकर आए पाकिस्तान में, जो वहां बैठा हुआ प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे उसके, और वो मर रहा था उस वक्त, अब वो जिंदा है। उसके बाद उसने कहा है कि तहरीक-ए-तहरीक कामयाब होती है तो मैं अगले दिन आ जाता हूँ। बेगैरत लोग हमारे पाकिस्तान को गलत नजरों से देखेंगे, नोच देंगे इनकी हम नस्लें। अब पाकिस्तान जाग उठा है, इमरान खान ने हमें जगा दिया है, और वो लीडर आया जिसके लिए हमारा खून भी कुर्बान है। आपके कितने बच्चे? जी मेरे 4 बेटियां और 1 बेटा है मेरा। उनको भी यही दर्ज देगी कि उड़ा दें उनको? बिल्कुल उड़ा दें। अभी तक इमरान खान ने नहीं उड़ाया, ये उसकी गलती थी, इनको पहले दिन उड़ा देना चाहिए था यहाँ से। और वो खातून जिन्होंने कोई तामुल नहीं किया इस बात में कि वो अपने बच्चों को भी खुदकुश हमला आवर बना देंगी ताकि वो नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, बिलावल को
गॉड, बहुत ही डरा देने वाला ये कल्ट है, बहुत ही। वाह वाह, कमाल है। चलें जलसे से चलते हैं, बहुत डिप्रेसिंग जलसा हो गया। 10 लाख में से हम 2 अगर निकल भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन हम लोग उससे अगले दिन कौमी असम्बली के इजलास में गए, वहाँ हमने देखा अपोजिशन का मूड, उनसे बात की। मैंने उनसे बार बार तकरीबन तमाम लोगों से एक सवाल किया, ख्वाजा आसिफ से मैंने पूछा, एहसन इकबाल से पूछा, और लोगों से सईद पूछा। गनी साहब, नफीसा शाह साहिबा, हाँ। खुरम दस्तगीर साहब। सईद गनी साहब क्या खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, कैसे वो एक लीडर जो बिल्कुल आवाम के साथ जुड़ा हुआ था। उनसे बात करके ये अंदाज़ा होता है कि एक अपनाइयत, कोई गरूर, कोई तकब्बुर नामो निशान को नहीं, और ऐसे बात करते हैं जैसे कि किसी सियासी लीडर को करनी चाहिए। काशिफ, एक्चुअली फ़र्क होता है जब एक सियासी कारकुन मरहलावार चलते हुए पार्लियामेंट तक पहुंचता है तो उसके मिजाज में और ये जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं ना, उनके अंदाज में बहुत फ़र्क होता है, और वो वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। आप एक तरफ पीटीआई वालों का तकब्बुर था, गर्दनों में सरिये डले हुए थे। अली मोहम्मद खान, ओ यूं। मेरे खुदाया, उफ, ऐसा पेट्रियार्कियल और काबिल नफ़रत बॉडी लैंग्वेज उन लोगों की होती है, और एक तरफ ये चेहरे हैं, सईद गनी जैसे चेहरे हैं। अच्छा खैर, ये बातें तो बिल्कुल ज़रूरी हैं करना, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा इन तमाम लोगों से, और वो ये था कि इमरान नियाज़ी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। असल में तो प्रोजेक्ट इमरान है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा ख्याल हम सईद गनी साहब की बात सुनते हैं कि उन्होंने कितनी अक्लमंदी से इस सवाल का जवाब और दिया। उनके साथ ही हम मोहसिन दावर साहब की बात भी अगर सुनवा दें तो। कि इमरान नियाज़ी के जाने से प्रोजेक्ट इमरान भी चला जाएगा या वो रहेगा, अभी उसे और लड़ना पड़ेगा। इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें बिल्कुल फौरी तौर पर तब्दील हो जाएंगी, लेकिन पिछले 3-3.5 सालों में अपोजिशन जमातों ने जो देखा है या उनके जो एक्सपीरियंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो है ना बहुत कुछ तब्दील करने पर मजबूर करेगा अपोजिशन की जमातों को, जो ज़रूरी है। तो जो कुछ पिछले 3.5 सालों में हुआ है, कम अज़ कम मैं उसको आगे बढ़ता हुआ तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप इमीडिएटली हर चीज़ को अंडू नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। और उम्मीद अच्छी है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमातों ने आपस में मिल के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ आए, लेकिन जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना सबक भी इंसान ज़्यादा सीखता है। तो उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल छोटा सा, 5 साल मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और वो 18वीं तरमीम लाए, एक स्पेस ऐसा जिसको जितनी भी कोशिश कर लें वो अंडू हो नहीं रहा इनसे। एक दफ़ा फिर अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो आप लोग कानून साजी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये सिस्टम और बचे, वरना तो इमरजेंसी भी लग सकती थी, कोई राह में रुकावट आई तो वो यही 18वीं तरमीम थी। तो प्लान यही है कि सब मिल के कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना के सिस्टम को मज़ीद मजबूत करें, या गवर्नेंस पहली प्रायोरिटी होगी? देखिए, इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जब हम कहते हैं हमने 18th अमेंडमेंट की तो लोग कहते हैं उससे कौन सा गरीब का पेट भरता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सोच है ये उन लोगों की है जो सिस्टम की अहमियत को समझते नहीं हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है तो आप गवर्नेंस अपनी ठीक नहीं कर सकते। तो बुनियादी चीज़ और बुनियादी जो अहमियत है वो सिस्टम की है, निज़ाम की है, वो आपका ठीक होगा तो गवर्नेंस को बेहतर करना आसान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद अगर कुछ जगहों से आवाज़ें आईं तो आवाज़ें उन लोगों की तरफ से आईं जो इमरान खान के साथ थे या उसके एजेंडे पे बातों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन किसी ऐसी जमात ने उस पर एतराज़ नहीं किया जिसने हमेशा 18th अमेंडमेंट पे फ़ख्र किया। तो मैं नहीं समझता कि 18th अमेंडमेंट से पीछे जाने की कोई बात है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आप अमेंडमेंट्स करते हैं तो कई चीज़ों में आपको कुछ फ्लॉज नज़र आ जाते हैं, कुछ मुश्किल नज़र आती हैं। वो उम्मीद है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर होंगी तो उसको ज़रूर ठीक किया जाएगा और बेहतरी होगी। जो भी रास्ता है वो इमरान खान के इक़्तिदार के खात्मे की तरफ जाता है। प्रोजेक्ट इमरान जाने का वो भी के साथ ही चला जाएगा या आपको लगता है कि अभी मजीद लड़ाई करनी पड़ेगी? देखिए, ये कोई लड़ाई शड़ाई कोई नहीं करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। इनके जाने के साथ ही, इमरान खान के जाने के साथ ही जो है नई गवर्नमेंट की जो तश्कील होगी उसको बड़े क्रूशल फैसले जो है करने पड़ेंगे, जिसमें कब मैंडेट जो है हमने आवाम से लेनी है उसके वक्त का भी एक तयन ज़रूरी होगा।
پھر یہ جو کھنڈرات چھوڑ کے جا رہا ہے، تباہی کے جو ایک پوری ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملک میں معاشی تباہی، اور ہمارے یہاں پہ کوئی چیز جو ہے، جو ایک ریاست کے سٹرکچر جو ہے، وہ کوئی بھی جو ہے وہ صحیح سلامت اس وقت نہیں کھڑا، اور تمام اسٹینڈ اسٹل پہ آئی ہوئی چیزیں، تو ایک بڑا ٹاسک ہے اپوزیشن کے پاس اس وقت۔ این آر او مانگا ہے وزیر اعظم نے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو میں جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں، تو معاف کرنے جا رہے ہیں، لیکن این آر او سے نہیں ملے، معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عمران نیازی کا خاتمہ تو ہو رہا ہے، آپ خوش ہیں اس ڈیولپمنٹ سے؟ کیونکہ لگتا یہی ہے کہ عمران بے شک چلا جائے، پروجیکٹ عمران اسٹل دیر۔ دیکھیے عالمیہ یہ ہے کہ یہاں پر حالات جب تک ہم پریکٹیکلی ان کو بدلتے دیکھ نہ لیں، ہمارے جیسے سیاسی ورکر کی بھی تسلی ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال ایک قدم ہے، عمران خان کو یہاں پر جس طریقے سے لایا گیا، پہلے دن سے ہم اس کی مخالف تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو ایک پبلک مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر ان کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اب اس کو اگر ہٹایا جا رہا ہے ایک جمہوری طریقے سے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد جو نیا ایپیسوڈ آئے گا وہ پھر اصل امتحان ہوگا، اور یہ جو ہماری سیاسی قائدین ہے اگر اس میں بھی اس دفعہ ناکام ہو گئی، کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج باتیں چھپتی نہیں ہیں، اعتماد پہلے بھی ہماری سیاسی قیادت پر بہت کم تھا ہماری عوام، اس دفعہ بھی اگر ان کو ہم نے فیل کیا تو میرے خیال میں یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ڈیموکریسی کو پرویل کرنے کی ضرورت ہے، کروانے کی ضرورت ہے، اور اہم بات یہ کہ یہ جو سپیس ون کی ہے یا قسمت نے دی ہے یا آپس کی لڑائی کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن کی یہ سپیس ملی ہے، کسی بھی صورت میں ملی ہے، اب اس کو یوٹیلائز کروانا ہے۔ محسن داوڑ نے جو بات کی نا کہ سوشل میڈیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے بھی اپنا ٹرسٹ کھو دیا اور وہی حرکتیں کی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن کے اسی ایجنڈے کو آگے لے کے چلے جو عمران نیازی کا ایجنڈا تھا یا پروجیکٹ عمران تھا، تو آئی تھنک معاملات جو ہیں وہ تھوڑے مشکل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے ایسا مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا، کیونکہ جب اتنی پارٹیز اکٹھی ہوں تو خان صاحب نہیں چل سکے، اتنے لاڈلے سلیکٹڈ وہ نہیں یہ کام اپنا کر سکے، تو شہباز شریف صاحب لے اوکھا ہو جائے گا۔ میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ خان صاحب رہیں تاکہ سب کے چاؤ پورے ہوں اور سب کو خوب تسلی رہے۔ میں سیاسی شہید بنتا نہیں دیکھنا چاہتی، ایسے انسان کو، ایسے فیشسٹ کو جس نے اس ملک کو خارجہ سطح پر تنہا کیا۔ داخلی امور کے حوالے سے ان کے پلے صرف وہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر 30 کلو ہیروئن ڈال دی، ٹھیک ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے، اور گورننس کے معاملات تو اللہ ہی حافظ ہیں۔ تو ایسے شخص کو آپ سیاسی شہید بنا کر نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ پونچھ پانچ کے مڑ کے پیش کر دو، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کو دوبارہ ووٹ دے دو، نہیں۔ پہنچنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ پرانے پانڈے ہوتے ہیں، ان کو کلئی کروا لیتے ہیں، تو لیکن پانڈا پرانا ہی رہتا ہے یعنی پانڈے کلی کرا لو پر پانڈا پرانا ہی رہنا ہے۔ اور یہ چھوٹا پانڈا ہوگا یا بڑا پانڈا ہوگا یا کوارٹر پلیٹ